यामिमां पुष्पितां वाचं प्रावदन्ति विश्यप्ति वेदवादर्ता पार्थ नानन्यदस्ति अवादिनः कामात्म स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वरगतिं प्रति. In this, Meaning. I'll just give a little explanation. Uh-huh. Lord Krishna says to Arjuna, men of all knowledge with limited understanding get attracted to the flowery words of the Vedas, which advocate attaining power, high birth, sensual pleasures, enjoyment, and bhog. They say that there is nothing more than this. This is the understanding of the people who don't have much knowledge. So now over to you, what Krishna really wants to explain by this. So could you this you so you've given the combined meaning of both 42 and 43, right? Yes, yes. Okay. So now could you also please read number 44? Okay. Yeah. भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तयापहरच्यते साम व्यवस्यातीत्मा बुद्धिः समाधो न विद्यते. In this, Krishna says, in the minds of those who are too attached to worldly pleasures and sense enjoyments and unable to possess determination for success on the path to God, for them samadhi is not possible इसका मैं because they're more into worldly pleasures and they believe that yeah, over to you. You can explain much go ahead. better. You found your meaning, so it's Yeah. good. Let's hear it. Yes. For them, Bhog is everything. So they think they are more knowledgeable and they understand it that way. Okay. But Krishna says that this is not the true knowledge or the true understanding. Okay. इसका हिंदी में भी मैं बता देती हूँ. Yeah. उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है. आज की जो मीटिंग है ना, ये बड़ा मुझे टाइम लगा खुद में इंटीग्रेट करने के लिए, क्योंकि उतनी सहज नहीं है, उतना सहज नहीं है निष्काम कर्म के बारे में बात करना, कर्म के बारे में बात करना विदाउट मोटिव, क्योंकि सारी जिंदगी तो जो चाहा है उसी के लिए काम किया है. इफ आई हैव वांटेड समथिंग आई हैव वर्कड इन दैट डायरेक्शन. इट हैज ऑलवेज बीन अ टू वे ट्रैफिक. इट हैज नेवर बीन वन वे कि बस काम करते चले गए. जब तक मैंने उसका आगे का नहीं सोचा, आगे के सोचे बिना मैंने खुद आज तक कभी काम नहीं किया. So to integrate it into my daily life, everyday life, and to understand it and to translate it, it has been a very great, deep process. Let me tell you. It took me a while to understand कि ऐसा कैसे हो सकता है कि क्योंकि हमारी जो सारी जीवन ऊर्जा है कर्म में लगी रहती है. कर्म को हम बेसिक हिंदी में काम कहते हैं. कामना, काम, ठीक है. काम में कामना होती है तो ही हम काम करते हैं. हमें कुछ चाहिए हम तो ही काम करते हैं, वरना हमें कोई हिला नहीं सकता काम करने के लिए. लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट वर्किंग विदाउट एक्सपेक्टेशन, एंड टुडे Krishna is talking about another aspect. He is talking about working without motive. Sorry. कुछ ना कुछ तो रहता ही है जिससे हम आगे देख के अपनी जर्नी पे चलते हैं. सारा प्लानिंग, सारा फोकस, सारी जीवन ऊर्जा, सारा ये संसार का जो नियम है ना, आगे देखने पर ही है. What will happen next? And now Krishna is bringing this energy back to this moment and saying that you be in the moment. तुम इसी मोमेंट में वापस आके बिना आगे का सोचे कृत्य में उतर जाओ. How difficult it is. I mean, I just could not fathom that how is this possible.
trust me, when I started reading Gita, it took me a long time to understand निष्काम कर्म, क्योंकि हम अगर कुछ जो हमारी डेफिनेशन है ना अच्छे कर्म की और बुरे कर्म की, हम अच्छे कर्म जो अपने माइंड से सोचते हैं, हम कहीं ना कहीं उन्हें ही निष्काम कर्म सोचते हैं कि हमने कोई दया भाव आ गया या हमने कुछ अच्छा कृत्य कर दिया. वी आर थिंकिंग दैट दोज आर निष्काम कर्म. दैट्स हाउ आई यूज्ड टू थिंक एट लीस्ट. But he is bringing a different quality to Nishkam Karma. He is saying not to expect. He is saying not to have any motive and to just do something, to just do your kritya. So I related a story to myself and I will relate it to you, which will intensify this experience of Nishkam Karma to you and working without motive. अकबर तो जानते ही हैं आप सब, उनके कोर्ट में एक तानसेन हुआ करते थे जो बहुत ग्रेट म्यूजिशियन थे उस टाइम के, बहुत ही सुंदर संगीत बजाया करते थे. एंड ही वाज अ की म्यूजिशियन, मतलब उनके ही वाज वन ऑफ द जेम्स इन हिज कोर्ट. और वो बस म्यूजिक बजाते थे तो ऐसी लय लगा देते थे कि व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाए. वन कुड बी जस्ट dissolved and lost, in his music. So one day when Akbar was going to sleep, तो उन्होंने सोचा कि जरूर तानसेन ने भी किसी से म्यूजिक सीखा होगा. So next day he asked तानसेन कि तुमने किससे म्यूजिक सीखा. तो उन्होंने कहा मेरे तो गुरु ऐसे हैं, मैं तो उनकी मतलब पाँव की मिट्टी भी नहीं हूँ, धूल भी नहीं हूँ, मेरी तो कोई तुलना की जा ही नहीं सकती अपने गुरु से. तो अकबर ने कहा आप उन्हें बुला के लाओ, आई वुड लाइक टू लिसन टू हिम. उन्हें जो भेंट देनी होगी दे देंगे. तो ये कुछ नया नहीं है कि हम हर चीज मनी से इक्वेट करते हैं. ये पुरानी प्रथा है कि कुछ भी हम सोचते हैं तो हम उसे मनी से इक्वेट करते हैं. तो अकबर ने कहा ले आओ, उसे जो भी पैसे भेंट वेंट जो भी देनी होगी हम देंगे. तो उसने कहा कि बात यह है कि मेरे जो गुरु हैं वो मनी से आएंगे नहीं, उनको कोई भेंट चाहिए नहीं. तो कहते मनी से नहीं आएंगे. तो कहते मतलब उन्हें ऑर्डर कर दो कि मैंने बुलाया अपने कोर्ट में. तो कहते किसी का ऑर्डर भी नहीं मानते वो. तो उन्होंने कहा कि उन्हें कैसे सुना जाएगा. तो उन्होंने कहा कि मैं पता लगाता हूँ. तानसेन ने कहा मैं पता लगाता हूँ कि वो कब म्यूजिक अपना बजाते हैं, तो हम सब हमें उन्हीं के टाइम पे चल के सुनना पड़ेगा. सो देन उन्होंने पता लगाया. उनके जो गुरु थे वो फकीर थे, फकीर हरि जी. जैसे अभी हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, उनका भी म्यूजिक सुने तो कहीं आप खो जाते हैं, तो वैसे ही उनके गुरु थे फकीर हरि जी. तो उन्होंने पता लगाया कि वो रात को 3 बजे, लाइक ट्वाइलाइट जोन, जब एकदम डॉन होने वाली 3-4 ब्रह्म मुहूर्त में आके वो अपना गाना गाते हैं और नाचते हैं और जो भी उनको म्यूजिक प्ले करना होता है म्यूजिक प्ले करते हैं. अब राजा जैसा इतना बड़ा अकबर, लाइक अकबर जैसा राजा, तो दे वेंट टू द फॉरेस्ट, उसकी कुटिया के बाहर बैठे रहे. और 3 बजे उन्होंने जब म्यूजिक अपना बजाना शुरू किया तो अकबर के जो आंसू निकले वो बस चुपचाप बस म्यूजिक सुनते रहे. एंड ही जस्ट डिसॉल्व्ड इन इट एंड कोई शब्दों की जरूरत नहीं थी. अगले दिन वापस अपने महल आए तो उन्होंने कहा कि तानसेन मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछूंगा कि तुम अपने गुरु जैसा क्यों नहीं बजा सकते. तो उन्होंने कहा, तानसेन ने जवाब दिया कि मैं कुछ पाने के लिए बजाता हूँ और मेरे गुरु ने कुछ पा लिया है वो इसलिए बजाते हैं. मेरे लिए अपना म्यूजिक बजाना एक साधन है. इट इज अ मीन्स टू गेट समथिंग और टू वट एवर आई डिजायर. मेरे लिए मेरा म्यूजिक साध्य नहीं है, योग नहीं है. मैं टेक्निक से बहुत अच्छा बजा सकता हूँ, बट अगर वो मुझे बिना, वो जो मुझे चाहिए अगर मुझे बिना बजाए मिल जाए तो शायद मैं बजाऊं ही नहीं. लेकिन जो मेरे गुरु हैं, he has attained, he doesn't need anything, he is beyond everything.
That is why whenever he is playing music, it is something of the beyond. When you listen to these things, और हमारी पूरी जर्नी जब आउटर में रहती है, हम अपने अंदर हमें झांकने का टाइम नहीं मिलता, तो अकबर ने क्वेश्चन किया कि किस लिए, ऐसा क्यों होता है, व्हाई एंड हाउ इज दिस पॉसिबल? तो तानसेन आंसर्ड कि सूरज रोज क्यों उगता है, हवा क्यों इधर बहती है, क्यों पानी कल कल करके अपनी चल पड़ता है. There are no answers. Existence does not have any motive. A flower blossoms. It has no motive. हम उसे तोड़ लें, बालों में लगा लें, गुलदस्ते में लगा लें, वो हमारी वो है. But a flower blossoming, it's a beauty, you know, it's abundance. It's a totally unmotivated act. It's a completion, it's a fruition, it's just being. It's just a happening. Think about it. Integrate it. हम हमेशा ये सोचते हैं कि ये जो पहला श्लोक है ना 42, इसमें जिसमें कविता आपने कहा कि आप बताएं कि जो वर्ल्डली हैं, या तो इसमें बात कर रहे हैं कि चाह परमात्मा की हो या धन की हो, चाह चाह है. चाह परमात्मा को इस लोक में पाने की हो तो आप पूजा प्रार्थना करते हैं, या परलोक जाने की हो तो भी आप पूजा प्रार्थना करते हैं, लेकिन चाह चाह है. हम ऐसे सोचते हैं ना कि यहाँ पर हम चाह नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें धन नहीं चाहिए क्योंकि फिर हम परलोक जाएंगे, वहां देयर आर रिचेस अवेटिंग फॉर अस. यहाँ पर काम वासना में नहीं जाएंगे एंड देयर आर अप्सराएं वेटिंग फॉर अस. यहाँ पर वी विल नॉट ड्रिंक, बट वहां पे तो शराब के चश्मे बह रहे हैं. सो दीज आर, हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर छोड़ देते हैं, ये छोड़ना आसान लगता है, और फिर वहां पर पकड़ लेते हैं. तो ये आपको कहीं ना कहीं बार्गेन नहीं लगती, भले इसे आप स्पिरिचुअल बार्गेन कहें या लाभ हानि कहें या इसे कैसे भी समझें, ये सब गिव एंड टेक ही चल रहा है हमारे माइंड का, मोटिव ही चल रहा है कहीं ना कहीं. पिछली बार मैंने बात कही थी, आई गिव एन इंस्टेंस ऑफ ओपनिंग डोर्स. लेट मी गिव यू अनदर इंस्टेंस. कि आपने कोई व्यक्ति जा रहा है, उसका छाता गिर गया या उसका हैंकी गिर गया, आपने उठा लिया, उठा के उसे दे दिया. जब आप घर से चले थे, दिस वॉजंट अ प्लान्ड एक्ट. आपको नहीं पता था कि ये व्यक्ति अपना हैंकी गिराएगा और यू आर गोइंग टू पिक इट अप. सो इट वॉजंट अ प्लान्ड मोटिवेटेड एक्ट. हैंकी गिर गया, आपने उठाया, इवन दैट वाज अ रिफ्लेक्स एक्शन परहैप्स, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग होती है, यू नो, तो आपने उठा के उसे दे दिया. बट कम टू थिंक ऑफ इट, जब उसने थैंक यू नहीं बोला तो उसमें आपको थोड़ी मोटिवेशन लगती है. ये बाद में पता चलता है. आपने दे दिया उस टाइम, ये एक्सचेंज होने में शायद इट वुड बी जस्ट अ कपल ऑफ मोमेंट, और ये हो गया. उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि उसने अगर थैंक यू नहीं बोला तो कहीं ना कहीं कोई अनकॉन्शियस मोटिवेशन थी इसमें. थिंक अबाउट इट. आई गिव एन एक्सरसाइज लास्ट टाइम. आई सजेस्टेड कि आप कोई भी एक निष्काम कर्म करके देखें. कोई भी एक काम आप ऐसा करके देखें जिसमें आपका कोई मोटिव ना हो, जिसमें आपकी कोई एक्सपेक्टेशन ना हो. I would again invite you to go into silence for 1 minute, close your eyes and think about it, and then share, meditate over it. कि जीवन में आप कोई भी ऐसा दिन में एक भी काम ऐसा करते हैं जिसके पीछे मोटिव और एक्सपेक्टेशन ना हो. क्योंकि let's take it like this, that this is a very big key sutra for Gita. If we understand Nishkam Karm, we can very easily understand and go in the journey forward. It doesn't matter कि हम रोज गीता का पाठ करें या ना करें, कुछ और मेडिटेशन करें ना करें, अगर हम निष्काम कर्म को समझ जाते हैं तो we understand a very key sutra of Gita. Let us just close our eyes, go into 1 minute of meditation of looking inward and see what we can actually watch in ourselves.
just go inwards. Whenever you are ready, you can open your eyes, unmute yourself, and share about Nishkam Karma. Any instance from your everyday life. और अगर नहीं कुछ ख्याल में आता कि नहीं निष्काम कर्म का अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया, शेयर दैट टू. क्योंकि देखें, अगर मैं ऐसे समझती हूँ कि अगर हमारी लाइफ जोरबा की तरह ही चल रही है, बाहर मटेरियल आउटर में ही चल रही है, और हमने अपने बुद्धाहुड बोधिसत्व होने का आभास नहीं किया, उसको अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में ट्रांसलेट नहीं किया, then these are just shallow words. They have no meaning. Think about it, and please unmute yourself and share whatever you would like to share about Nishkam Karma. निष्काम कर्म इज जो भी काम आप कर रहे हो, you don't expect anything, right? Right. Yes, right. Yeah, okay. So, like when I'm traveling, मैं जब MTR में travel कर रही हूँ, हाँ. Of course I have a motive, but I don't have any expectation. Okay. And this is just like if I'm sitting and I'm traveling on the MTR, and I see an elderly couple or an elderly person, I might just get up and give my seat to this thing. I don't have any expectation from the elderly person, but my motive is that the person should be able to sit, because I can stand for a long time. Sorry? If they thank you, do you like it? If they thank me, fine. But it doesn't this thing. It's just that मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बैठी हूँ and an elderly person is sitting, standing. I see where you're getting at, but my question is कि अगर वो thank you करते हैं तो अच्छा लगता है, और नहीं thank you करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, then it's fine. नहीं, thank you करने से कोई फर्क नहीं पड़ता. Beautiful. Because उन्होंने उनका काम किया, मैंने अपना काम किया. That's it. Nishkam he doesn't believe in saying that thank you. It's moment, okay. You do it, and then अगर इसमें से motive भी हटा दो, अपनी ये चाह भी हटा दो, because Krishna is saying that Krishna is telling Arjun that there are elderly people in, right in front of him, and he has to go into battle. So वो motive भी हटा दो. Just do you want to give your seat to any couple or any elderly person? Do it. Don't, and if you want to give it to somebody who's not elderly, then also do it. Do not classify. Sorry, who is? Do not bifurcate. हाँ? अगर उसमें से motive तो रहता है. How do you do some work without a motive? That is what even I am processing in my mind. That is the process he is talking about. So वही तो बात है ना, मैंने वही कहा कि इसको इंटीग्रेट करने में बहुत मुझे चर्निंग करनी पड़ी अपने अंदर. That how can you do with something without a motive? MTR में बैठी हो तो कहीं ना कहीं तो पहुंचना है ना, मोटिव तो है ही.
नहीं तो यूं ही तो नहीं बैठ गए ना कि लाइक यू जस्ट वेंट एंड यू सैट, बिकॉज यू आर गोइंग समवेयर, द मोटिव इज ऑलरेडी प्रेजेंट. Think I about work for strays, so I feel I'm doing it without any, I don't expect anything from strays. that's beautiful. I feed them stray, treat them Yeah. with medicines and all. So वो मुझे लगता है कि शायद मेरा उसमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन But you have a motive now, letting them and not letting them being I hungry like or that everyone is cross questioning, and let's question our motives and let's question our nishkam. सोनिया, मुझे मॉर्निंग में गार्डनिंग करना बहुत अच्छा लगता है. जब मैं सुबह अपना पौधों को पानी देता हूँ, उसकी कटिंग करता हूँ, उसके थोड़ा सा शेप्स करता हूँ. आई थिंक दैट इज द ओनली वर्क आई फाउंड इन माय लाइफ दैट इज विदाउट एनी मोटिव. अदरवाइज मैं किसी गरीब को कुछ दान देता हूँ या कुछ देता हूँ, तो वहां भी मुझे लगता है कि मेरा कुछ ना कुछ मोटिव होता है कि वी आर फीलिंग सेटिस्फाइड आवरसेल्व्स. अदरवाइज जो गार्डनिंग वाला जो पॉइंट है, वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो विदाउट एनी मोटिव है. वो मेरी हॉबी समझ लीजिए, हॉबी के हिसाब से मैं चलता हूँ. मैं इसी में आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत सुंदर. ऐसे ही अगर आप ट्रांसलेट करेंगे अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में, और अगर एक निष्काम कर्म भी अगर आप 24 आवर्स में अपनी दिनचर्या में जोड़ सकते हैं, इट विल गिव यू लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ जूस, बिकॉज वो अपने आप में वो मोमेंट एनलाइटनमेंट का मोमेंट है. जब ये सेशन शुरू हुआ तो निष्काम कर्म के जैसे मुझे लगा कि शुरू हुआ. YouTube पे डाला, people started watching, it was no longer Nishkam Karm. Then I'm looking how many people have subscribed, how many people have watched this video. So then the mind comes in, और आगे आगे आगे. So we have to continuously watch and think of anything that we are doing and bring the mind out of it, so that we can remove the motive and just do. It can be a very simple thing like gardening. It can be very simple thing like cooking. It can be anything. Anything spontaneous? It could, yes, it's spontaneous. It is spontaneous. It is both ways actually. If you plan it, then you already have a motive. Then already point A to point B is already in the mind. Some turning is practice is required. Practice Definitely, is required. yes. थोड़ा अपने अंदर contemplate करना पड़ेगा, ऐसा कोई कर्म ढूंढना पड़ेगा, ऐसा कोई कृत्य ढूंढना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा, और फिर अपने आप को वॉच करना पड़ेगा कि मेरा माइंड कहाँ आ गया, मोटिव कहाँ आ गया. वर्ल्डली जो कविता जो आपने मीनिंग ढूंढा, उसमें आपने वर्ल्डली देखें. हम वर्ल्ड में हम ऐसा सोचें कि हमने वर्ल्ड में यहाँ पे डिजायर छोड़ दी, और यहाँ पे इसलिए छोड़ दी कि आगे हमें परलोक मिलेगा और आगे हम स्वर्ग जाने वाले हैं, वहां पे हमारी आफ्टर लाइफ बड़े हमें पुण्य मिलने वाले हैं. तो वो डिजायर को हमने वॉच नहीं किया. दैट्स हाउ आई सी इट. सो इट्स नॉट फॉर मी. We all have our different interpretations. For me, desire is desire, whether it is of this world or it is about the world we are going to inherit in our next life or afterlife or whatever you may call it. Huh? Yeah, very true. People look for it, but it is not that way. It's the way like what you have Some explained. people it is like that. हर एक का मतलब, मैं अपनी बात कर सकती हूँ, कविता अपनी बात कर सकते हो, है ना. हाँ, बिल्कुल. कृष्ण ने अर्जुन को जो बोला, हमें इस बात को अपनी अपनी लाइफ में कैसे ट्रांसलेट करना है, ये सारी जर्नी उसी बात की. एक फिक्स आंसर नहीं हो सकता. जो कृष्ण ने अर्जुन को कहा, इफ ही वाज दुर्योधन's सारथी, do you think he would have said the same thing to Duryodhana? No, because the questions would have been different, the time would have been different, the space would have been different. पूरा gestalt उसका बदल जाता. पूरा तुम्हारा देखने का जो एक नजरिया है वही बदल जाता. So we have to translate the unmotivated act if in our day-to-day life, and if we can do that, that karma becomes yoga.
अगर हम वो कर सकते हैं तो वो कर्म योग बन जाता है। हमें फिर कोई और साधना की जरूरत नहीं है, वो कर्म अपने आप में एक कंप्लीट योग होके वहीं पर आपको स्थित कर देता है, आपको एनलाइटनमेंट की एक झलक दे देता है। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। एक और श्लोका मैं आज करना चाहूंगी, इसी से रिलेटेड है, तो फ्लो में Kavita, would you, I'll just share the screen and then could you please read sloka number 45? Yes, please. Yeah. हाँ जी। त्रैगुण्य विश्या वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुनु निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। Could you scroll? हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य लय संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं, इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुखादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थित तथा योगक्षेम को न चाहने वाला और आत्मवान हो। थैंक यू। फ्लो की बात कही कि इसी फ्लो में हम कर लेते हैं, तो अपने त्रिगुण होते हैं। आई थिंक वी आर ऑल अवेयर अबाउट इट, बट वील जस्ट डू अ क्विक रिकैप। रजस, सत्व और तमस त्रिगुण होते हैं, और हमारी लाइफ की साइकिल इन्हीं त्रिगुण में हम घूमते रहते हैं। सेशन शुरू हुआ रजस, सेशन चल रहा है फ्लो में सत्व या सात्विक, और सेशन खत्म हो गया तमस। आपने लॉग इन किया रजस, आपने सुना सत्व, आपने उसे इंटीग्रेट किया और सेशन लॉग आउट कर लिया तमस। आपने गीता का पाठ शुरू किया रजस, बात धीरे धीरे इंटीग्रेट अपने अंदर हो रही है सत्व, बात समझ आ जाएगी तमस। और फिर वापस आप आज गीता का पाठ कर रहे हैं, फिर विज्ञान भैरव तंत्र का पाठ करेंगे, तो इसी तरह से इन्हीं साइकिल में हम घूमते रहते हैं। तो पहली इसमें जो बात कृष्ण, ये आर वी क्लियर अबाउट रजस सत्व एंड तमस? वी विल बी एक्सपैंडिंग अ लॉट ऑन द थ्री गुण्स इन द कमिंग श्लोकास, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सबको अबाउट थ्री गुण? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, okay. So I don't know. Rani, was that you? No, Bela. Okay. हमारे 3 फ्लोज हैं, 3 फ्लोज नहीं कहेंगे, 3 स्टेट्स हैं प्रकृति की। एक तो है रजस। रजस इज व्हेन यू इनिशिएट समथिंग, द फर्स्ट स्पार्क। जैसे अब वैक्सीन आ गई है इंडिया में, बहुत सारे लोग लगा नहीं रहे हैं, तो उसे थोड़ा धक्का देना पड़ रहा है, ठीक है। वो जो स्टार्ट हुई है और वो जो धक्का देने वाला पार्ट है और जो लोगों को अवेयर करने वाला पार्ट है, वो रजस, ठीक है। वैक्सीन Rajas. हाँ जी, It's called Rajas. It's called Rajas. Rajas, yes, Rajas. That is the initiator, the starting point. When you start something or when the spark, the ignition, the गाड़ी चलाई, that is Rajas. गाड़ी चल पड़ी, वैक्सीन लगने लग गई, सब लोग लाइनों में लग के वैक्सीन लगवा रहे हैं, सत्य। वैक्सीन का पूरा अभियान खत्म हो गया, गाड़ी ने जहां पहुंचना था वहां पहुंच गई, तमस। So these are, and फिर गाड़ी फिर चल पड़ेगी रजस, गाड़ी फिर चलेगी सत्व, गाड़ी फिर रुक जाएगी तमस, फिर रजस सत्व तमस, रजस सत्व तमस। बहुत सारा रजस हो जाएगा तो बस फिर वो अग्रेशन और उसी में रहेंगे। बहुत ज्यादा फ्लो हो जाएगा तो ग्राउंडिंग नहीं रहेगी, रियलिस्टिक नहीं रहेंगे। और अगर तमस में रहेंगे तो लेथार्जी रहेगी, इनर्शिया रहेगा, एनर्जी उठेगी नहीं। कहते नहीं आज बहुत लो है, आज एनर्जी उठी नहीं रही, कुछ करने का मन नहीं करा, दैट इज अ स्टेट ऑफ तमस।
So these are different states of our Prakriti, of everyone's Prakriti. Prakriti is one of the components of Sankhya, which we will be expanding on. But just Prakriti हम सभी जानते हैं प्रकृति, उसी के 3 forms हैं, 3 एक जैसे चक्कर में है, like रजस, सत्व, तमस. कौन सा पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, depends on the individual. तो एक तो इसमें कृष्ण बात कर रहे हैं कि इस साइकिल्स को ट्रांसेंड करना है. दूसरी बात कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट की. आज का टॉपिक भी था कामना एंड कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट क्या है? ड्युअलिटी है. राग नहीं चाहिए, द्वेष नहीं चाहिए. You want tea or coffee, you would never say I don't want anything. You would always opt for either tea or coffee. अगर राग नहीं चाहिए, मतलब किसी से एंटीपैथी है, किसी से गुस्सा है, हॉस्टिलिटी है, नाराजगी है, या फिर प्रेम है, उसके पीछे जा रहे हैं, there is never the middle point. या इस तरफ है या इस तरफ है, या फ्रेंडशिप है या एनमिटी है, या वो या घृणा है या प्रेम है, या रात है या दिन है. ड्युअलिटी में ही व्यक्ति घूमता रहता है. जब आप कोई चीज छोड़ते हैं, मैं आपसे बोलूं कि आप गुस्सा, प्रकाश जी इसमें हम पिछली बार आपके क्वेश्चन पर भी आएंगे कि हम आपसे बोलते हैं कि आप गुस्सा छोड़ दो. आप छोड़ते तो वही है ना जो आपने पकड़ा होता है, नहीं तो आप उसे छोड़ेंगे कैसे? अगर गुस्सा है ही नहीं अपने अंदर तो आप उसे छोड़ेंगे कैसे? जब मैं आपको चूज करने के लिए कहती हूँ तो आप छोड़ते तो उसे ही है जिसे आपने पकड़ा होता है. पकड़ रखा है. Think about it, integrate it, internalize it. When you get 2 things to choose from, आप अच्छाई चुनते हैं क्योंकि पकड़ी तो बुराई हुई है. आप अच्छा होना चाहते हैं क्योंकि हर टाइम बुरा होने का डर पकड़े रहता है. कुछ ना कुछ तो ड्युअलिटी माइंड में चलती रहती है. अच्छा क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि अपने अंदर कुछ तो नेगेटिव देखते हैं. ओके, लेट्स ट्रांसलेट इट लाइक दिस. वी हैव अ कॉन्शियस माइंड एंड वी हैव एन अनकॉन्शियस माइंड. जो हमारा चेतन मन है दैट इज ओनली 10%, और जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो है लाइक द रिमेनिंग 90%. तो उसमें जब आपका चेतन मन है, उसको ऐसे कंपेयर करें कि दैट इज योर हाउसेस लिविंग रूम. आपके घर का ड्राइंग रूम है वो. ठीक है, आपने जो ड्राइंग रूम में आप किसे बुलाते हैं? अपने गेस्ट को बुलाते हैं. ठीक है, उनके साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वहां पे डेकोरेशन के आइटम्स लगाते हैं. Where I'm sitting right now, this is not my living room. These are just the props for this session. So ये मेरा रियल लाइफ रूम बेडरूम नहीं है, ये सिर्फ टेम्पररी, मैंने सिर्फ ये सेशन के लिए प्रॉप्स लगा के रखे हैं. ठीक है, तो आपका ड्राइंग रूम भी ऐसा ही है कि आप सब बहुत अच्छी अच्छी चीजें लगा के रखते हैं क्योंकि आप उसमें लोगों को इनवाइट करते हैं एंड यू प्रोजेक्ट एवरीथिंग टू बी नाइस. लेकिन आपका जो माइंड कहता है कि ये गलत है या ये ठीक नहीं है या ये आपकी बीइंग के अगेंस्ट है, वो आपके जो माइंड का जो अनकॉन्शियस गोडाउन है ना, आप उसमें ना भरते रहते हैं. आप कोई भी आपके घर में जो गेस्ट आता है उसे बेडरूम में नहीं लेके जाते. यू जस्ट ब्रिंग दैट पर्सन टू द लिविंग रूम, प्रोजेक्ट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग एंड दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी. बिकॉज यू आर ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट. आप हमेशा दबाते रहते हैं. जब तक आप उसे वॉच नहीं करेंगे, उस पर मेडिटेट नहीं करेंगे, वो तहखाने में दबा रहेगा और आपके मन को फीड करता रहेगा. If there is no duality, your mind will not have anything to feed upon. Let's get this straight. हमारे अंदर वो सब है, हर एक के अंदर है. इसमें कोई बहुत अच्छा कोई बहुत बुरा ऐसा नहीं है. किसी ने बहुत दबा लिया, किसी ने बहुत नहीं दबाया. अभी हम में से पहुंचे हुए लोग अभी है नहीं. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. हाँ, तो ये सबकी क्रिया चल रही है.
कोई उसे बहुत अच्छे से वॉच कर पा रहा है, कोई दबा पा रहा है, कोई वर्क करना चाह रहा है और कोई वर्क कर रहा है, कोई उस दिशा में चल पड़ा है, कोई चल पड़ेगा. Everyone's individual journey. Huh? But what we hold back is what we suppress, and that is what which creates duality. एक मिरर है. अब अगर मिरर खाली है तो उसमें, let's say a mirror is like, lying against a blank wall, it will not show up anything. But if I go and stand in front of the mirror, it will show me. आप खड़े हो जाएंगे दर्पण के सामने तो आप नजर आएंगे. लेकिन हम अपने माइंड को इस तरह से ब्लैंक नहीं कर पाते, अपनी बीइंग को उस तरह से ब्लैंक नहीं कर पाते. हमारी तो फिल्म चलती रहती है. फिल्म कैसे चलती रहती है? हम अटैच होते रहते हैं, अटैच होते रहते हैं, अटैच होते रहते हैं. या इसको ऐसे लें कि अगर एक कैमरा है, अब इतनी सारी एप्स आ गई हैं, आप एक फोटो लगाते हैं, फिर उसके ऊपर दूसरी फोटो लगाते हैं, फिर तीसरी फोटो लगाते हैं. सो यू आर ओवरलैपिंग वन थिंग ऑन द अदर, वन थिंग ऑन द अदर. That is the state of your being. There is no clarity, there is duality, there is conflict. And Krishna is saying that if you can come out of this conflict, फिर ना कोई सुख है, ना दुख है, ना पाप है, ना पुण्य है, कामना भी नहीं है, सिर्फ कर्मयोग है. Hari Om Tat Sat. Thank you. Anything you'd like to say about this? You are very welcome to share before we go into today's meditation. Conflict के बहुत सारे examples हमें अपने day to day life में हर time. Conflict तो अभी ये भी चल रहा है that it's 7:39 and I have to go make a call, somebody is at the door, it's your dinner time. Conflict, duality, it's a part of our life. But लेकिन अगर हम इस moment में यहाँ पर totally हो गए, वो अपने आप में स्थित हो गए, त्रिगुण से पार हो गए, कामना रहित हो गए, तो वो कर्मयोग की शुरुआत है. और इससे पहले आई एम लुकिंग एट प्रकाश जी, सो आई वुड लाइक टू ब्रिंग दैट क्वेश्चन बैक. पिछली बार आपने कहा था कि क्वेश्चन था कि गुस्सा आता है और गुस्से में हम कुछ भी बोल जाते हैं, या हम उससे पार क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि गुस्से को हमने अपने तहखाने में दबाया हुआ है. हम उसे वॉच नहीं करते, हम उसे सप्रेस नहीं करते. और वो गुस्सा, हम सुबह मंदिर जा रहे हैं तो सोच रहे हैं गुस्सा नहीं करेंगे, घर आते ही कोई ऐसी बात होती है कि अचानक गुस्सा आ जाता है, क्योंकि गुस्से को दबाया है, गुस्से को समझा नहीं है, गुस्से को देखा नहीं है, गुस्से के ऊपर मेडिटेट नहीं किया है. All of those things or any of those things, the choice is yours. This whole sutra is about choicelessness. हम हमेशा चूज करते हैं, लेकिन बात सारी choiceless awareness. सबसे बड़ी बात सोनिया जी ये है कि ना, हम जब अपने आप से नहीं जुड़ते ना, अपने अंदर से नहीं जुड़ते, तब तक हम किसी चीज को छोड़ नहीं पाएंगे. ये मैंने बहुत बार महसूस किया है. जब भी किसी बात पे गुस्सा आता है, उसके बाद में, या कभी मैं खुद अपने लिए मेडिटेशन में बैठता हूँ, देन आई फाउंड माई सेल्फ कि यस, ये चीज मुझे छोड़ना है. किस हिसाब से छोड़ना है? मेरा मन अपने अंदर से इस बात को मतलब महसूस कराता है मुझे. इसी से रिलेटेड एक बात कहूंगी. अगर यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स हैं, अगर किसी को हाइपरटेंशन है, मैं ये नहीं कहती कि हो, लेकिन अगर है तो सेशन से पहले और सेशन के बाद चेक कर लेना. क्या होता है कि जब हम इस तरह के कोई भी सेशन में बैठते हैं या कोई भी मेडिटेशन में बैठते हैं, बिकॉज दिस इज द टाइम यू हैव चोजन टू बी विद योर ओन सेल्फ. You are not listening to me, you are listening to your own questions which are arising within you. तो जब आप इस तरह के किसी भी सेशन मीटिंग में बैठते हैं और अगर नींद भी आ जाती है, तो अपने आप आपकी बॉडी की एक रिदम, बॉडी अपने आप एक सत्वा, एक सात्विक फ्लो में अपने आप आ जाती है. This is just an example. So anything that you do, you can be in a choiceless awareness mode. कि अब आए गए तो ठीक है, पूरी अटेंड मीटिंग कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं. नींद आ रही है तो वीडियो ऑफ कर देते हैं, चलेगा.
सही। आज की मेडिटेशन करने, लेट्स मेडिटेट। तो आज विपासना, ओम, जिब्रिश, चलें आज जिब्रिश करते हैं। बहुत प्यारी मेडिटेशन है, इसी से रिलेटेड है। आपको एक क्विक रिकैप दूंगी। गुरजीत ने गुरजीत मिस्टिक का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने जिब्रिश इन्वेंट करी। वो कहते थे कि कोई भी आता है तो इतना उसके अंदर भरा होता है, सो फुल ऑफ गार्बेज इफ आई मे से, कि अगर कुछ भी हमें उसके अंदर डालना है, समझाना है, तो पहले जो अंदर कचरा भरा हुआ है, पहले जो अंदर गुस्सा भरा हुआ है, पहले जो अंदर सप्रेस किया हुआ है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम जिब्रिश कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा फनी हो सकता है, मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो उसने ऐसा एक डिवाइस दिया कि आपको कोई भी ऐसी लैंग्वेज में बोलना है जो आपको ना आती हो। तो आपको आंखें बंद कर लेनी है, और अगर इफ यू कंफर्टेबल लेट द वीडियो बी ऑन, अदरवाइज यू कैन, मैं एक बार करके दिखाऊंगी। कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ साउंड्स आने देने हैं। और देखें अगर हम अपने आप को थोड़ा खाली कर पाते हैं। अपना ऑडियो ऑन कर दीजिए, सारे वीडियो ऑफ रहेगा चलेगा, ऑडियो ऑन कर दीजिए, क्योंकि जब आप जिब्रिश करते हुए सुनेंगे तो इट वुड बी हेल्पफुल, यू नो, टू गो इनटू मेडिटेशन। तभी ग्रुप एनर्जी इज ऑलवेज हेल्पफुल। यस, so let's go into gibberish and I will tell you when to stop. It's a very beautiful technique. You can do it before sleeping, you can do it in the washroom when you are stressed. Let's do it and then let's see how it goes. Let's start. Love, 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 इसी मोमेंट में बिल्कुल अपने अंदर चले जाएं। Take a moment to come back to yourself. अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखते हुए, जब आपको सहज लगे, you can slowly open your eyes. Gibberish, we just did it for a minute, but आप 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे भी कर सकते हैं। और कुछ जब मेडिटेशन आपको ना समझ आए, सिर्फ अगर जिब्रिश भी करेंगे, उसके बाद जब आप साइलेंस में जाएंगे तो आपको पूरा ऐसा अनुभव होगा कि आपके अंदर की कितनी सारी लेयर्स डिसॉल्व हो गई।
And this I can say from my own personal experience. हर चीज, everything can be a device. So today's meditation was gibberish. Any questions on gibberish or anything about your experience? And let us do one thing. अगली बार जब मिलेंगे तो निष्काम कर्म and working without motive और gibberish का कुछ भी जो भी एक्सपीरियंस होगा उसे जरूर शेयर करें. इसी से हमारे प्रोसेसेस जो हैं अपने अंदर इंटरनलाइज भी होंगे, इंटेंसिफाई भी होंगे. ठीक है, थैंक यू.